Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic Folks, where we simplify what truly matters. So if you're honestly aiming for UPSC 2026, then आपके पास अभी precisely 10 months है for prelims 2026 and 13 months है for mains 2026, which is undoubtedly absolutely sufficient. फिर चाहे आप beginner हो, अपना first attempt 2026 में देने वाले हो, या आप already attempts देते आ रहे हो, but still you are struggling somehow. बट देन यस, इसके साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रीलिम्स तो हर साल 5 to 6 लाख एस्पिरेंट्स देते हैं, बट मेंस लिखने का मौका हार्डली बस 14,000 एस्पिरेंट्स को ही मिलता है. यानी कि हर 50 एस्पिरेंट्स में से बस एक ही मेंस लिख पाएगा. एंड अब इस सिनेरियो में ना अपन के पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाते हैं. फर्स्ट कि या तो वो एक एस्पिरेंट हम खुद बन जाएं, एंड सेकेंड कि या फिर हम रेस्ट बचे 49 में से एक बनकर रह जाएं और फिर एक और साल पूरी दोबारा तैयारी करें फ्रॉम स्क्रैच, जो आई एम वेरी श्योर कि कोई नहीं चाहता. So if you are truly committing to a serious UPSC attempt in 2026, begin by declaring it to yourself. Comment below in this video and affirm that yes, I will clear UPSC 2026 and make my dream a reality. Because every journey begins with a simple promise to yourself. And here's also the best part. From now on till December 2025, this is what toppers actually quietly call the golden period of UPSC preparation, जो हमें कोई नहीं बताता. Why? Because see, अगर आप इस टाइम को थोड़ा भी सही से यूटिलाइज कर ले गए ना, तो आप बहुत आराम से इवन उन कैंडिडेट्स को भी आउट कम्पीट कर ले जाओगे जो एक बार भी मेंस या इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं. Even if you haven't started anything yet, you can still be ahead. But here's the hard truth. This year in 2025, 14,161 aspirants will write mains. But only 979 will make it to the final list. The rest, over 13,000 aspirants, will reappear again in 2026. Thereby, them making to be your only real competition, which no one actually talks about. And that is why you can't afford to be casual right now. But you know what, even despite knowing this all, still 90% aspirants will repeat the same mistake. वो in next 8 to 9 months में सिर्फ prelims perspective से ही subjects को पढ़ते रहेंगे. One subject maybe in 2 months or so. Thinking that there is still a lot of time, अभी तो बहुत time बचा है. But the moment UPSC notification drops on 14 January 2026, their slow mode will flip into direct panic mode. And ये मैं आपको अपने experience से बता रही हूँ ये बात. And by then, let me tell you that there will be no time for mains, no time for proper revision, and definitely no time for the real practice. That's why the approach you take now matters more than anything. Even our cricket legend MS Dhoni says that process is more important than the results, and if you take care of the process, you will get the results. So today, I will discuss and break down step by step which subjects to study when for both prelims and mains, where to study them from, when and how to start your optional, how to begin current affairs from scratch, and most importantly, when and how to integrate answer writing and MCQ practice. ठीक है? And yes, before we move ahead, we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही time हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. And this is exactly where we need the daily answer writing practice, for which I will suggest you textbook Pass Ali program, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माई कोड थिंक22 टू गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. सो ज्वाइन द प्रोग्राम एंड फील द डिफरेंस योरसेल्फ. ठीक है? तो चलिए अब इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझना. ठीक है?
तो सबसे पहले ये जो हमारे कमिंग नेक्स्ट 10 मंथ्स हैं, इनको बेसिकली मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। द फर्स्ट फेज विल बी योर फाउंडेशन फेज, फिर सेकंड फेज होगा जो हमारा सिर्फ और सिर्फ मेंस सेंट्रिक फेज होगा, जिसमें हम पूरा अपना एसे हो गया, एथिक्स हो गया, या जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है लाइक सोशल जस्टिस हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, इनको कैसे प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। एंड देन उसके बाद जो लास्ट फेज होगा हमारा टिल द प्रीलिम्स, वो होगा हमारा रिवीजन फेज। ठीक, अब अगर मैं बात करें कि प्रिपरेशन में हमें क्या क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि जनरल स्टडीज में देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, बट लेकिन ये ओवरलैपिंग है आपके प्री और मेंस के साथ में। तो वहीं पे कुछ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको हम फेज 2 में टारगेट करेंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी GS1 एंड GS2 के पूरे सिलेबस को कैसे हमें ब्रेक डाउन करना है माइक्रो टॉपिक्स में, एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या होता है इस सिलेबस में, बिकॉज जो मेंस का सिलेबस है हमारा वो बहुत ही ज्यादा ओपन एंडेड है। तो इसमें एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या माइक्रो टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, क्या क्या इंटरलिंकेजेस हैं, बिकॉज अब यूपीएससी क्या करने लगा है ना, GS1 का जो सेम क्वेश्चन होगा वो कुछ साल बाद उठा करके आपका GS2 में पूछ लेगा। ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया है। नोट्स कैसे बनाने हैं ये पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो एक बारी आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना। एंड यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इन वीडियोस को देखने के बाद कि आपको क्या फील होता है, क्या हमें GS3 के ऊपर भी एंड GS4 के ऊपर भी रादर ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। ठीक, अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स देखो हमें पूरा इस प्रिपरेशन में 1 साल का नहीं बल्कि 1.5 साल का टारगेट करना होता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इतने बड़े करंट अफेयर्स को हम रिटेन कैसे करेंगे विदाउट प्रैक्टिस। तो करंट अफेयर्स को भी हमें कैसे पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर का कैसे यूज करना है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इन तीनों ही वीडियोज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहां पे इन तीनों वीडियोज को एक बार प्लीज बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन सीरियसली गो थ्रू कर लेना। इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, बिकॉज ये मैं आपको अपने खुद के 4 मेंस एंड 2 इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ। ठीक, तो करंट अफेयर्स हो गया। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शनल को चूज करना होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ज्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, टॉपर्स के ऑप्शनल्स को देख करके अपने ऑप्शनल को पहले ही चूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपको ऑप्शनल कब चूज करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर रीडिंग द 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स विच इज योर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। हालांकि ऑप्शनल के ऊपर मैं एक सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो करने वाली हूँ बहुत जल्द। कमेंट करके मुझसे प्लीज ये भी शेयर करना कि आपने अपना अगर ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है तो वो कौन सा ऑप्शनल है। एंड लास्ट इज CSAT, जो बहुत अपने आप में मेजर रोल प्ले करने लग गया है। कहने को ही क्वालिफाइंग है, बट ये क्वालिफाइंग रहा नहीं है, जिसमें आपको न्यूमरेसी, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना होता है। तो अब ये जो पूरा का पूरा है आपका GS, करंट, ऑप्शनल, CSAT, इसको कैसे करना है आइए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेज 1 से, जो कि होगा हमारा फाउंडेशन फेज। एंड बाय फाउंडेशन फेज आई मीन कि हम यहाँ पे सिर्फ 4 बेसिक सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। लेकिन जो भी हम टारगेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे जो हमारा प्री प्लस मेंस हम एक बार ही पढ़े और हमारा दोनों में काम आए, दोनों की तैयारी हो। ऐसा नहीं कि हम 90% एस्पिरेंट्स की तरह सिर्फ प्री के हिसाब से ही प्रिपेयर करते रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इस आपका फर्स्ट फेज में जो आपको टाइम देना है दैट इज अबाउट डेली 6 to 8 आवर्स, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल टाइम पीरियड है। अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 घंटा डेली पढ़ाई करोगे तो लेट मी टेल यू 1-2 दिन कर पाओगे, लेकिन नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 डेज में उसके बाद में आप इसका ना 50% भी नहीं पढ़ पाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हर एक टॉपर यही बोलता है कि आप जो है सस्टेनेबल टाइम दो, दैट इज 6 to 8 आवर्स। तो हमें जो 4 मंथ्स का फेज है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, इसमें 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शनल के रिगार्डिंग में एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि देखो ऑप्शनल को जब भी आप तैयारी करोगे उसको आपको पूरा का पूरा 5 मंथ्स देना है अच्छे से, बिकॉज यू हैव 2 पेपर्स हेयर। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 प्लस इसका आप टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, तो ये आपका 3 महीने में होने वाला काम नहीं है। और प्लस ये पूरे 500 मार्क्स का पेपर्स है, इसलिए इसको 5 महीने देना है। अगर आपने एनी केस ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है तो आपको अपना ऑप्शनल मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट करना है। और अगर डिसाइड नहीं किया है तो मैं एक सेपरेट वीडियो तो इसके ऊपर जरूर करूंगी, लेकिन अगर अभी तक नहीं डिसाइड किया है और आप पहले अपना थोड़ा GS का पोर्शन पढ़ना चाह रहे हो बिफोर डिसाइडिंग योर ऑप्शनल, देन द बेस्ट टाइम टू डू ऑप्शनल इज फ्रॉम नवंबर टू मार्च। ये पूरे 5 महीने में आप कवर कर सकते हो। तो ठीक है, तो अब चलो एक एक करके हर एक सब्जेक्ट को इन डिटेल में समझते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टिल 30 जुलाई पूरा 30 डेज हम सबसे पहले देंगे पॉलिटी को। पॉलिटी को एज ए सब्जेक्ट में सबसे पहले इसलिए हमेशा रखती हूँ बिकॉज इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के ही आते हैं, चाहे आपका प्री हो या आपका मेंस हो। प्री में यहाँ पे आप देखो नियर अबाउट 30 to 35 मार्क्स का पोर्शन पॉलिटी से आता है, तो वही मेंस में जो 250 मार्क्स का जीएस पेपर 2 है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो पूरा बना चुकी हूँ, वहां पे 50% 20 में से 10 क्वेश्चन 125 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से आते हैं, ध्यान रखना। अब पॉलिटी को कवर कैसे करना है ये देखो। सबसे पहले इसके लिए आपको बेसिक एनसीईआरटीज पढ़नी है। क्लास 11th वाली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है वो मस्ट है, इसको जरूर पढ़ लेना। क्लास 12th वाली ऑप्शनल है, इसमें आपके 2 बुक्स आती हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। टाइम हो तो पढ़ लेना, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। हालांकि एनसीईआरटीज के ऊपर भी यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी, पूरा डिस्कस करूंगी कि हमें कि कौन सी एनसीईआरटीज हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी जरूरी है, क्या हमें 6 से 12 तक पढ़नी है या 11-12 पढ़नी है, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज इसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी इसी मंथ बाय द एंड ऑफ जून। ठीक, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटीज के बाद आती है लक्ष्मीकांत की बारी, जो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स होगा पॉलिटी के लिए, जो हमारा 100% प्री के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस, तो मेंस में भी जब जीएस2 का मैंने वीडियो किया था ना, तो वहां पे आई डिस्कस 2 to 4 टॉपिक्स जो आपका पूरा लक्ष्मीकांत से ही प्रिपेयर होता है और वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है कि यार 30 डेज में हम लक्ष्मीकांत को पूरा पेज टू पेज तो नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत बड़ी बुक है, तो इसको हम एक्चुअली कैसे खत्म कर सकते हैं कम टाइम में, उसके लिए ऑलरेडी मैंने ये वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसको एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज इसमें मैंने डिस्कस किया है कि आप कैसे नियर अबाउट 10 to 12 डेज में अपना पूरा अच्छे से इन डेप्थ लक्ष्मीकांत, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली हो गया, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो आपको थ्रू आउट दिस फेस करनी है, 2 चीजें हैं रादर, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो है प्रैक्टिस। जब आप 30 दिन पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो उन्हीं 30 दिन में जब आप डेली जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री एंड मेंस के लगाने हैं। प्री के आपको 20 to 30 ईयर्स लगाने हैं, मेंस आपको 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना कि कौन सी बुक्स हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए फॉलो करनी है जो कि सॉल्व हो, तो वो आपको वीडियो के जस्ट नीचे शॉपिंग टैब में मिल जाएगी। मैंने वहां पे लेटेस्ट एडिशंस मेंशन कर दिए, आप उनको जाकर के परचेस कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा आपको किसी भी 2 इंस्टीट्यूट के ले सकते हो आप, चाहे विजन आईएएस हो, चाहे आपका नेक्स्ट आईएएस हो, हिंदी मीडियम से अगर आप हो तो आपका दृष्टि आईएएस हो गया या फोरम आईएएस हो गया। इनके आपको टेस्ट साथ के साथ पॉलिटी रिलेटेड लगाने हैं, तो ये पॉलिटी में भी करना है और ये बाकी सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में भी करना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है उसको ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको अभी ऊपर दिखाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से आप जाके देख लो कि अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो हमें कैसे पढ़ना है, बिकॉज अब आपको रेगुलर इसकी हैबिट डालना जरूरी है और इस तरीके से कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर पाओ, आप उसको रिटेन भी कर सको, एंड दैट टू ओनली इन 1 to 2 आवर्स डेली। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, दैट इज कि आपको इनिशियली 15 दिन में ना आपको कोई भी न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से चूज करना है, सिर्फ उसकी हेडलाइंस गो थ्रू करो और डेली फिर आपको रात में इनसाइट्स आईएएस या विजन आईएएस पे जाओ। विजन आईएएस में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स, उसको जाकर के पढ़ो ताकि आपको एटलीस्ट 15 डेज में कुछ एक हैबिट तो पड़ेगी, बिकॉज हैबिट पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे तो आपके 6 से 7 घंटे निकल जाएंगे। देन आफ्टर 15 डेज आपको क्या करना है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर अगेन द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से टारगेट करना है, पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स उस तरीके से करना है। हाँ, इसके साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, वो मैंने करंट अफेयर वाली न्यूज़पेपर वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, एक बार देख लेना। और मंथली मैगजीन पढ़नी है, ये आपका रेगुलरली पूरा टाइम चलता रहेगा फ्रॉम फेज 1 टिल फेज 3। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कि हम अपना प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के ही 30 दिनों में पूरे पॉलिटी का, मेंस के पूरे पेपर का 50% और प्री के भी अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर लेंगे, जिससे हमें काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट 30 डेज फ्रॉम 31st जुलाई टिल 29th अगस्त इकोनॉमी को। इकोनॉमी में भी अगर आप देखोगे तो प्री में 35 to 40 मार्क्स का पेपर आता है और मेंस में 100 to 125 मार्क्स का आता है। इकोनॉमी के लिए हमें बेसिक एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12th की आपकी मैक्रो एनसीईआरटी मस्ट है, दोनों ये पढ़नी ही पढ़नी है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स आप कोई भी इकोनॉमी में एक फॉलो कर सकते हो, इट कुड बी आइदर विवेक सिंह सर्स बुक और नितिन सिंघानिया सर्स बुक और मुनाल सर के नोट्स या संजीव वर्मा सर की बुक, कोई भी एक बुक आप इसके लिए रेफर करो। रमेश सिंह मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करती हूँ। ठीक है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए, बिकॉज कई बार बुक से नहीं हो पाता
आती है। यू कैन यूज दीज वेबसाइट्स, अर्थोपीडिया एंड विकासपीडिया बहुत अच्छे से विद इलस्ट्रेशन ये बताते हैं। प्लस लेकिन इकोनॉमी का प्री प्लस मीन्स कैसे हमें एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है इन 30 डेज में, उसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आऊंगी। एंड सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी सब्जेक्ट वाइज कि इनको हमें डे वाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करते करते कैसे फिनिश करना है। अगर आपको इन वीडियोस की नीड जल्दी हो सो प्लीज मुझे आप कमेंट्स में बता देना, बिकॉज आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो मुझे टाइमली पता चलती रहेंगी तो उस हिसाब से मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है। एंड इकोनॉमी में भी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। नाउ आफ्टर इकोनॉमी कम्स द हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने पूरे यहाँ पे 38 डेज दिए हैं, फ्रॉम 30th of August till 6th of October हम पूरा हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री को मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा है बिकॉज अगर मैं इसको स्टार्टिंग में डाल दूंगी ना तो हमारे 2 महीने 3 महीने कब निकल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। और ना ही मैंने इसको बहुत ज्यादा लेट किया है कि अगर हम लेट करें तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाए, इसलिए इसको बैलेंस्ड वे में बीच में रखना जरूरी होता है। प्री में अगर आप हिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो टोटल हिस्ट्री से 20 to 30 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है प्री में, इंक्लूडिंग द आर्ट एंड कल्चर माइंडेड। तो मेंस में वहीं आपका 75 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री से आता है। इसके लिए जो एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि यार कौन सी एनसीईआरटीज हम पढ़ें, ओल्ड पढ़ें, न्यू पढ़ें, क्या करें। तो एंशिएंट और मेडिवल वाले टॉपिक्स के लिए ना आप ओल्ड एनसीईआरटीज आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा मैंडेटरी है, जरूर पढ़ना है। इसके साथ में आप नई वाली दोनों एंशिएंट और मेडिवल की थीम्स पढ़ सकते हो, या फिर वाजीरामन रावे की वेबसाइट पे जा करके वहां पे आपको यूपीएससी क्वेस्ट नोट्स के नाम से सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप जाके एंशिएंट और मेडिवल के नोट्स को पढ़ के खत्म कर सकते हो विद जस्ट ओल्ड एनसीईआरटीज इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर नंबर ऑफ डेज में डेडिकेटेड बताऊं तो आप एंशिएंट को दे सकते हो 7 डेज, मेडिवल को भी दे सकते हो 7 डेज। इसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स वाली बुक पढ़नी है एंड उसके स्टैंडर्ड सोर्स के लिए आपको नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़नी है, पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनको कैसे आपको डे वाइज स्ट्रैटेजी के साथ कवर करना है ये मैंने प्रॉपरली पूरा इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो इससे जाके रेफर कर सकते हो, बिकॉज ये प्री प्लस मेंस दोनों में इक्वली सेम इंफॉर्मेशन काम आती है, तो इसके लिए हमें सेपरेटली इंटीग्रेटेड वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम एक ही बुक है, इसी को पढ़ना है। इसको हमें कैसे कवर करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर मैं मेंस पर्सपेक्टिव की बात करूं GS1 की, तो इसका वीडियो तो मैं पूरा डिटेल में अभी आपको ऊपर दिखाई थी, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सेम तरीके से आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे साथ के साथ चलता रहेगा इन 38 डेज में। नाउ आफ्टर हिस्ट्री हम करेंगे नेक्स्ट 25 डेज में कवर फ्रॉम 7th till 31st of October ज्योग्राफी को, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा लेट नहीं रख सकते। प्री में इसका कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देखो 28 to 36 मार्क्स का पेपर ज्योग्राफी से आता है, तो वही मेंस में GS1 में 75 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटीज हमें कौन सी पढ़नी मैंडेटरी है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। क्लास 11th की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहीं क्लास 12th की इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये चारों बुक्स पढ़नी जरूरी है। बट ये जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ये यहाँ से आपका सफिशिएंट नहीं है, इसलिए आपको इसके साथ क्या करना है, PMFIS की बुक्स आती हैं, अगेन वो आपको वीडियो के नीचे शॉपिंग टैब में मिल जाएगा उनका लिंक, वहां से जाके उसे परचेज करके इसके साथ ना एड ऑन करके तैयार कर सकते हो, बिकॉज इतना मटेरियल तो सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज ज्योग्राफी में आपको करनी होती है मैपिंग, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग से आपको प्री में खासकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये मैपिंग आपको कैसे करनी है इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ कि जब आप ये फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक्स पढ़ रहे होगे ना, तो इसमें जो भी चीज लिखी है उसको जहां पे आप जो लोकेट कर सकते हो अपनी मैप बुक पे उसको करो, देन एंड देयर करो। अदरवाइज मैपिंग के रिगार्डिंग आप मुझसे प्लीज अपने थॉट्स को शेयर करो कि क्या मैपिंग के रिगार्डिंग हम सीरीज को शुरू करें। ठीक है, बिकॉज यूपीपीसीएस के एग्जाम भी आ रहा है, उसमें भी मैपिंग का बहुत एक्सटेंसिव रोल रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं फिर मैपिंग स्टार्ट करूंगी फॉर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी बोथ। यूपीपीसीएस के लिए अगर जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उसको 2025 एंड 2026 में, तो मैंने थिंक यूपीपीसीएस करके एक सेपरेट चैनल खोला है जहां पे हम स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी अगर आप स्टेट पीसीएस को टारगेट करने का प्लान कर रहे हो। ठीक,
अब ज्योग्राफी में अपार्ट फ्रॉम मैपिंग एंड एनसीईआरटी कम्स द स्टैंडर्ड सोर्स। स्टैंडर्ड सोर्स एक तो मैंने आपको पीएमएफ-आईएएस बता ही दिया है, उसके अलावा आते जीसी लियोंग। जीसी लियोंग में आपका जो सिर्फ पार्ट 2 है ना इंडेक्स का, दैट इज वेजिटेशन वाला पोर्शन, उसी को पढ़ना है। इसके अलावा आपको जीसी लियोंग में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जीएस1 का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कर चुके हैं हम। सेम वे से आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा फेज 1 होता है कंप्लीट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। सो नाउ आफ्टर अक्टूबर कम्स द फेज 2, जो कि हमारा होगा मेन सेंट्रिक फेज पूरा 3 मंथ्स का, फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। यहाँ पे हमें डेली बेसिस पे 8 घंटा देने का टारगेट करना है कि हाँ 8 घंटा हम आराम से दे पा रहे हैं। डेली शेड्यूल के ऊपर हमें क्या हमारा डेली शेड्यूल होना चाहिए, इस 8 घंटे को हम कैसे मैनेज करेंगे बहुत इजीली कंफर्टेबली, इसके ऊपर भी मैंने ये वीडियो सेपरेटली किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहां पे आप जाके देख लेना। ठीक है, टारगेट इसमें हमें क्या करना है कि हमें पूरा मेंस अब बाय जनवरी खत्म करना है, इंक्लूडिंग द डेली आंसर राइटिंग, जिसके ऊपर मुझे आपके प्लीज सजेशंस चाहिए। मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आंसर राइटिंग के ऊपर हम एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं खुद आप सभी के आंसर्स इवैल्यूएट करूंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो यहाँ हम ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप डिसाइड कर चुके हो तो आप अगस्त से लेके दिसंबर तक अपना ऑप्शनल वाइंड अप करिए। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, आप फेज 1 के 4 सब्जेक्ट्स को खत्म करने के बाद डिसाइड करना चाहते हो, देन आपके पास अब जो विंडो है दैट इज द सेकंड विंडो विच ओपन्स फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। यहाँ पे आपको ऑप्शनल खत्म करना है, डेली 3 से 4 घंटा देना है इन 5 महीने, क्योंकि 2 पेपर्स आपको कवर करने हैं, टेस्ट सीरीज के साथ खत्म करना है, और एक सेपरेट वीडियो हम ऑप्शनल के ऊपर डेफिनेटली करेंगे। ठीक, तो अभी जो एक्चुअल फेज शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर टिल 30th ऑफ नवंबर। 30 डेज जो हमें पूरे के पूरे देने हैं मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। सोसाइटी आपका जीएस1 में तो 100 मार्क्स का आता है, लेकिन सोशल जस्टिस जो बिल्कुल बहुत अच्छे से ओवरलैप करता है सोसाइटी के साथ, वो जीएस2 में कवर होता है, 25 मार्क्स का आता है ये एग्जैक्ट। इन दोनों को ही मैंने जीएस1 जीएस2 की वीडियो में कवर किया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या माइक्रो टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, कैसे इसके नोट्स बनेंगे, कैसे इंटरलिंकिंग करेंगे, वो आप वहां से समझ लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटीज में यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपको सोसाइटी के लिए क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज हैं, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, उसको कवर करना है, एंड इसके अलावा विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल फॉलो करना है। ठीक, आप इन दोनों ही पेपर्स को मिला करके 10 डेज पूरा का पूरा डिवोट करके खत्म कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट हमारा, दैट इज आईआर एंड द गवर्नेंस। ये आपके दोनों टॉपिक्स जीएस2 में आते हैं, 50 मार्क्स ईच के लिए। यहाँ पे आप बेसिकली करंट अफेयर्स पे तो डिपेंडेंट रहोगी, लाइक मेंस 365 आपको पढ़ना होगा, वो भी इस साल का। अगले साल का आप 26 का तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आपको 25 का भी कवर करना है। वाई? बिकॉज 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछता है, एंड उसके साथ साथ अगेन विजन आईएएस का ही वैल्यू एडेड मटेरियल आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। इन दोनों को आप मिला करके 10 डेज में आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद आपका जो आता है जीएस3 स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड डीएम। हालांकि जीएस1 एंड जीएस2 के ऊपर तो हम वीडियो कर चुके हैं, लेकिन जीएस3 के ऊपर हमें वीडियो आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट्स में अपने फीडबैक के थ्रू शेयर करके बताओगे। ठीक है, सिक्योरिटी का मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 40 मार्क्स का आता है सिक्योरिटी जीएस3 में, एंड 20 मार्क्स का, 10 to 20 मार्क्स का बल्कि मैं बोलूंगी आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब जब आप ये 30 डेज में ये सारे मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर कर रहे होगे ना आपने जीएस1, जीएस2 एंड जीएस3 के, तो आपको साथ के साथ यहाँ पे देखो आपका आईआर हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, जिससे सोशल इश्यूज वाला कॉन्सेप्ट आता है, वहां से आपके प्री रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं 20 to 30 इयर्स के, एंड मेंस के अगेन आपको 5 to 7 इयर्स के करने हैं। साथ में आपको एक मेंस टेस्ट सीरीज भी मैं इस टाइम पे रेकमेंड करूंगी, शुरू कर देनी है इस टाइम पीरियड पे लगाना। करंट अफेयर्स आपका सिमिलर वे से चलता रहेगा, जैसे मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था फेज 1 में। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट दिसंबर वाला पूरा महीना। ये जो 30 डेज है फ्रॉम 1st to 30th ऑफ दिसंबर, 30 डेज में हम एथिक्स एंड ऐसे को यहाँ पे टारगेट करेंगे। देखो एथिक्स हमारा जीएस4 होता है, इसको हम देंगे पूरे के पूरे 20 डेज। इसके ऊपर वीडियो मैं करने का सोच रही हूँ, आपका मुझे फीडबैक अगेन कमेंट्स में आप शेयर करो कि आपको जीएस1 एंड जीएस2 कैसा लगा। अगर आपको वो समझ में आता है तो हम जीएस3 एंड जीएस4 के ऊपर भी वीडियोस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली बता देती हूँ कि स्टार्ट आपको कैसे करना है। एथिक्स के सिलेबस में जितने भी सिलेबस के कीवर्ड्स है ना, उनकी डेफिनेशंस एंड 2 एग्जाम्पल्स साथ में लिख करके आपको नोट्स बनाने हर एक कीवर्ड पर। जैसे आपका
इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, वैल्यूज एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, इन पे आपको जो है डेफिनेशंस एंड दो एग्जांपल्स लिखने हैं, जिसमें से आपका एक एग्जांपल करंट अफेयर रीसेंट बेस्ड होगा और एक आपका रियल लाइफ बेस्ड होगा, बिकॉज यही आपके मार्क्स को स्कोर करवाने में बहुत हेल्प करेगा। स्टैंडर्ड सोर्स आपको इसके लिए छोटी सी बुक आती है लेक्सिकन, उसे आपको फॉलो करना है। एस्से के लिए आपको बेसिकली दिसंबर से शुरू करना है कि हर 10 दिन में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना 5 से 7 साल के, उसको कवर करने हैं। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो जरूर करूंगी। यहाँ पे आपको सिमिलर तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स करते जाना है, ठीक है। Now after this comes your environment, जिसको हम 15 डेज में कवर करेंगे फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर टिल 14th ऑफ जैन। ये एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से। यहाँ पे आप वेटेज भी देख सकते हो कि प्री में 28 to 36 मार्क्स का आता है, तो वही मेंस में अराउंड 50 मार्क्स का आता है। एनवायरमेंट में पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी आपको क्लास 12 की पढ़नी है, बायोलॉजी वाली। उसमें भी आपको सिर्फ एक यूनिट है इकोलॉजी का, इसमें आई थिंक टोटल 5-6 चैप्टर्स आते हैं, सिर्फ उसको पढ़ना है एनसीईआरटी से। एंड कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स, माइंडेड ओनली वन स्टैंडर्ड सोर्स इसके लिए फॉलो करना है। इट कुड बी इधर शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस। साथ में आप इसको करंट अफेयर्स के साथ सफाइज करोगे। जीएस3 के वीडियो के बारे में आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे। सिमिलर तरीके से आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे चलता रहेगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको हम जनवरी के एंड में, अगर आप कायदे से देखो ना, तो बाय 30th ऑफ दिसंबर हम मेंस पर्सपेक्टिव से काफी सारा मोर देन 90% पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। सिर्फ ये छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं, इनको मैंने जनवरी में डाला है बिकॉज यहां से जैन ऑनवर्ड्स हम प्री स्पेसिफिक थोड़ा सा अपनी तैयारी को डेविएट करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में 20 to 30 मार्क्स का और मेंस में 30 to 50 मार्क्स का आता है। एनसीईआरटीज की एक समरी आती है, इसको भी मैंने वीडियो के नीचे शॉपिंग टैब में अटैच कर लिया है। अब वहां से साइंस की एनसीईआरटी की समरी पढ़ सकते हो, वही उतना नेसेसरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको वैल्यू एडिशन करना है किसी भी कोचिंग के नोट्स का फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी, लाइक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया। इन वाले सेक्शंस को कवर करने के लिए आप कोचिंग के नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलर तरीके से आप प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स करोगे। सो बाय द जैन एंड हमारा फेज 2 जो मेन सेंट्रिक फेज है वो पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो चुका होगा। अब इसके बाद आता है लास्ट फेज दैट इज द रिवीजन फेज, फेज 3, जो आपका फेब 2026 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम टारगेट करेंगे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को, जिसमें हम एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन दोनों मेथड्स को यूज करते हुए कैसे हमको रिवाइज करना है, इसके ऊपर मैं उसी टाइम पे फेब में ही वीडियो लेकर के आऊंगी या जैन एंड तक ले आऊंगी, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड सीसैट। आप यहीं से फेब ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट करोगे। आपका फेब, मार्च, अप्रैल एंड 23 डेज ऑफ मई, या आपका अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स हो जाता है। इसमें आपका सीसैट बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश को टारगेट करना है। इनके ऊपर मैंने रिस्पेक्टिव सीसैट स्ट्रैटेजी की वीडियो एंड पूरी की पूरी इंग्लिश की वीडियो कि आप कैसे सिर्फ एक वीडियो से अपना यूपीएससी का इंग्लिश कवर कर सकते हो, अनसीन पैसेजेस वाला, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा यूपीएससी प्री प्लस मेंस 2026 का प्रिपरेशन करेंगे। 10 मंथ्स प्री के लिए, 13 मंथ्स मई 2026 के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।